A very good morning to all the students of class 6. Dear student, today we will study the fifth chapter of social science from the book Our Land, Our World. So let's start the chapter 5th. So, dear student, as you can see in my screen, the fifth chapter of social science named as Different Ways of Life, the Vedic period and the Chalcolithic settlements. Okay? So, dear student, very first, you should know what are the significant terms of this chapter or the important terms of chapter. मतलब जो important terms, जो important words इस chapter में use हुए हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है. जैसा कि आप मेरी screen पे भी देख पा रहे हैं, the significant term of chapter. So, सबसे पहला है दासा और दाशु. तो ये क्या होते थे? The original inhabitants of India who were driving out by the early Aryans. मतलब जिन जातियों को आर्यंस ने निकाल दिया था, मतलब अपनी लाइफ से, सोसाइटी से आउट कर दिया था, उसे हम क्या बोलते हैं? दास या फिर दाशु बोलते हैं. ठीक है. नंबर 2 जो सिग्निफिकेंट टर्म है, दैट इज वर्णा सिस्टम. So, what is Varna system? This is very important that you should know the division of society into 4 principal castes. That is called Varna system. The next important part is ashrams. So, these are 4 stages of human life. The fourth important part is radiocarbon dating. So, the method of determining the age of living things on the basis of carbon. जो living thing होती थी उसकी age को किससे आपको डिटरमाइन करना होता था? किस मेथड से? बेसिस ऑफ कार्बन से आपको उसको डिफाइन करना होता था. उसे हम क्या कहते थे? उस मेथोलॉजी को रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो until the discovery of Indus Valley civilization in 1921-22, the Vedic period was considered to be the beginning of Indian history and civilization. As you all know, surprisingly, our past was revealed to us by a few European scholars like William Jones and Max Muller. तो जो विलियम जॉन्स थे एंड मैक्स मुलर थे, इनसे हमें हमारे यूरोपियंस थे, इनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चला था, जिन्होंने who were greatly influenced by the richness of Sanskrit language and literature. So these scholars found many common words of Sanskrit, ठीक है, and European language, and concluded that in the past Indian and European shared a common homeland, probably in the central area. They were called Aryans. उन्हें हमने क्या बोला? जो कॉमन एक होमलैंड था, उसे हमने सेंट्रल एशिया बोला, और उन लोगों को हमने आर्यंस बोला. So according to some historian, one group of Aryans migrated to Europe and the other one called Indo-Aryan moved eastward into Iran and India during the late 3rd and 2nd millennia BC. So the Indo-Aryan were cattle breeding people. They were militarily superior to the original inhabitant of India. So they are Aryan as described in the Rigved. तो जो हमारा ऋग्वेद था उसमें क्या था? आर्यंस को कंप्लीटली डिफाइन किया गया, आर्यंस के बारे में ऋग्वेद में बताया गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वैदिक एज. अब हमें क्या समझना है कि वैदिक एज क्या थी. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वैदिक एज.
So let's understand what exactly the Vedic age. So it is an important period in the history of India. Indian की history में ये बहुत ही important टाइम था, जो एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था. कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था? जो कि बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स जो बहुत ही धीरे धीरे होता है. ट्रांसफॉर्मेशन था pastoral nomadic life of the Aryans who eventually became land tiller. ठीक है. So the age that began around 2000 BC was a marked development in political system, religious and society. तो ये जो डेवलपमेंट था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इन सोसाइटी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हुआ था. इट इज कॉल्ड द वैदिक एज. इसे हमने क्या बोला? वैदिक एज. वैदिक एज बोला बिकॉज मच ऑफ नॉलेज अबाउट द पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेद्स which were composed during this period. तो इस एज को हमने वैदिक एज के नाम से जाना. क्यों जाना? क्योंकि इस एज में हमने बहुत सारी चीजों को अपने नॉलेज के द्वारा हमने डेवलप किया. हमने वेदों से चीजों को समझना शुरू किया. ठीक है. तो इसलिए हमने इस पीरियड को क्या बोला? वैदिक एज बोला. सो द आर्यंस ऑक्युपाइड northern India through a gradual process covering many centuries. Initially, they settled in a region called सप्ता सिंधु. इनिशियली वो जहाँ पे सेटल हुए थे उसे हमने सप्ता सिंधु के नाम से जाना, जो क्या था? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ से 7 नदियां थी. ठीक है. इंडस, रावी, बीस, चेनाब, झेलम एंड सतलज, सरस्वती. ठीक है. तो उसको क्या बोला? इसलिए उसको हमने क्या बोला? सप्त सिंधु बोला. 7 नदियों का जो था, 7 नदियां वहां पर थी. ठीक है. दे नेम्ड दिस रीजन एज अ ब्रह्मावर्त. उन्होंने इस रीजन को किसका नाम दिया? ब्रह्मावर्त का नाम दिया. ठीक है. सो दिस period is known as the early Vedic period or the Rigvedic period. तो हमने इस पीरियड को क्या नाम दिया? तो इस पीरियड को किस नाम से जाना गया? अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वेदिक पीरियड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेम्बर दिस. विच पीरियड इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है. बिकॉज ऋग्वेदा, द फर्स्ट of the 4 Vedas was composed. क्यों इसको ऋग्वेदिक पीरियड कहा गया? क्योंकि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, उसमें जो ऋग्वेद था वो फर्स्ट, सबसे पहले इसी पीरियड में बनाया गया था. इसलिए हमने इस पीरियड को वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वेदिक पीरियड बोला गया. Now dear student, let's understand the Vedic literature. मतलब वैदिक एज की लिटरेचर क्या थी, ये अब हम लोग आगे समझते हैं. अब हमें आगे क्या समझना है कि वैदिक एज का लिटरेचर क्या था. So let's understand it. So let's understand the Vedic literature. So dear student, let's understand द वैदिक एज. मतलब वैदिक एज क्या थी? तो वैदिक एज क्या थी? द वैदिक एज इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज देयर वाज अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन द pastoral nomadic life of the Aryan who eventually became land tillers. तो ये क्या था? वैदिक एज जो था एक ग्रेजुअल मूवमेंट था, मतलब ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था आर्यन से वैदिक एज में आने का. ठीक है. तो कब ये एज स्टार्ट हुई? ये अराउंड 2000 BC स्टार्ट हुई एंड मार्क डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन एंड सोसाइटी. 2000 BC में स्टार्ट हुई और एक बहुत ही अच्छा मार्क पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम और सोसाइटी में इन लोगों ने स्टेब्लिश किया. इट इज कॉल्ड वैदिक एज. इसको हमने क्या बोला? वैदिक एज बोला. क्यों बोला? बिकॉज इस एज में बहुत सारे वेद, यानी कि बहुत सारी नॉलेज अबाउट दिस पीरियड इज डिराइव फ्रॉम द वेद्स. मतलब जो इस पीरियड की नॉलेज थी वो किसके थ्रू डेवलप हुई? वेद्स के थ्रू डेवलप हुई. इसलिए हमने इसको क्या बोला? वैदिक एज बोला. ठीक है. So the Aryans occupied in northern India through the gradual process covering many countries. Essentially settled region called
सप्त सिंधु। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? सप्त सिंधु में हुआ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो किससे किससे मिक्स था, 7 नदियों से जुड़ा हुआ था, इसे इसलिए हमने सप्त सिंधु कहा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैदिक एज के फीचर्स क्या थे। फीचर्स मतलब वैदिक एज में लिटरेचर कैसा था, वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वैदिक एज में किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, तो लिटरेचर में क्या था, वैदिक एज में जो मेन लिटरेचर डेवलप हुए वो हमारे 4 वेद थे, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो ये लिटरेचर थे जो किसके थ्रू आए, एक ओरल, एक वर्बल कंपोज्ड वो थे, वर्बल कंपोज्ड वेद थे, जो धीरे धीरे रिटन फॉर्म में आए। और रिटन में कौन इसको लाता था, जो ब्राह्मण होते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो इन वेदों को क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, द ब्राह्मण्स आर एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द वैदिक मंत्र। तो वैदिक मंत्र जो थे वो ब्राह्मण रिपीट करते थे, इसलिए जो ब्राह्मण्स थे उन्हें हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो Aryankas composed in forest deal with the philosophy of life and creation. So the Upanishad are the concluding part of the Brahmans and form the source of Indian philosophy. तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर द उपनिषद। तो उपनिषद क्या था, एक कंक्लूडिंग पार्ट था, कंक्लूडेड पार्ट था। किसका पार्ट था, ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का एक कंक्लूडेड पार्ट था, जो किसका रिसोर्स था, किसका सोर्स था, इंडियन फिलोसफी का रिसोर्स था। So the Vedic literature is a great source of information about custom, belief and life of Aryan. तो वैदिक लिटरेचर क्या थे, सोर्स थे किसका, एक कस्टम का, बिलीफ का और लाइफ ऑफ द आर्यंस, आर्यंस की लाइफ का एक बिलीफ थे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द अर्ली वैदिक पीरियड। हम लोग किसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, अर्ली मतलब 2000 बीसी से, जो पहले का टाइम था। 2000 बीसी में आर्यंस का डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले वैदिक पीरियड कब था, 1500 बीसी। डे स्टूडेंट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, दिस इज अ रिमार्केबल पॉइंट कि वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड एज कहाँ पर था। तो 1500 बीसी से 1100 बीसी तक का पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द होम ऑफ आर्यंस। So the earliest settlement of the Aryans in India was set up in the valleys of Sindhu, Saraswati and Darshawati. ठीक है, इन 3 रिवर्स के आसपास था। They were mainly confined present day of Punjab, जो पंजाब के आसपास थे। The outer settlement is reached in the bank of the Ganga and Yamuna, जो outer settlement थे वो गंगा और यमुना के बीच में थे। ठीक है, and Aryan tribes still live on the western side of the Sindhu. ठीक है, जो Aryan tribes हैं, कुछ tribes हैं वो अभी भी सिंधु के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये वहां का क्या था, होम ऑफ द आर्यंस थे, जो ये 3 रिवर्स के किनारे बसे हुए थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। तो मेनली वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था, आर्यन लिव इन सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स दैट कॉल जनास। तो जो वहां के ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्हें जनास बोला गया। ठीक है, जो इन द ऋग्वेद पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड में दे वर डिवाइड इनटू 5 ट्राइब्स। मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में उन्हें 5 ट्राइब्स में डिवाइड किया गया, दैट इज पंचाजनास, a group of family formed clan or wish, several wish formed jan. The garma was the smallest unit of the jana. The gramini was the head of the village. तो जो ग्रामीणी होती थी वो क्या होती थी, head of the village होती थी। So and the important part is राजन। राजन क्या होता था, ट्राइबल का चीफ होता था। ट्राइबल चीफ मतलब किंग ऑफ द
किंग ऑफ द दैट पर्टिकुलर जनास। जो ट्राइबल्स होते थे उनका चीफ जो होता था उसे हम क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। ठीक है, वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसकी क्या ड्यूटीज थी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स एंड टू लीड हिज ट्राइब टू द विक्ट्री। मतलब अपने ट्राइब के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना और अपनी ट्राइब की विक्ट्री के लिए हमेशा अग्रसर रहना। ठीक है, he received a bali from the people in return of his service। उसे लोगों के द्वारा, मतलब वॉलंटियर डोनेशन से, लोगों के द्वारा लोगों से इलेक्ट एक बंदा मिलता था जिसे हम लोग बाली कहते हैं, जो उस किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, the raja was assisted by a number of officer in the administration of jana। तो उस जन में क्या होता था, कुछ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते थे जो राजा को हेल्प करते थे। द पुरोहित परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द राजन। तो राजन की जो सोसाइटी में जो रिलीजियस चीजें होती थी, यानी कि पूजा पाठ होते थे, वो पुरोहित करते थे, जिसको हम लोग पुरोहित बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। द सेनानी वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी। जो आर्मी का कमांडर होता था उसे सेनानी बोलते थे। एंड द काउंसिल ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड सभा। और जो काउंसिल होती थी, मतलब जहां पे मीटिंग्स होती थी, उसे हम क्या बोलते थे, सभा बोलते थे। ट्राइब्स की जहां पे मीटिंग होती थी उसे हम सभा बोलते थे। ही ऑल्सो टुक द एडवाइस ऑफ समिति विच कंसिस्टेड ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। और वो जो सभा होती थी वहां पे किससे एडवाइस ली जाती थी, समिति से एडवाइस ली जाती थी। जो समिति होती थी वो प्रोमिनेंट मेंबर्स की होती थी। ठीक है, द सभा एंड समिति एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग। तो जो सभा और समिति होती थी वो राजा की जो पावर्स होती थी उसको कंट्रोल करती थी। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो वैदिक एज का था वो बहुत ही अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। वहां की आर्यंस की सोशल लाइफ कैसी थी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, जैसे कि वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, देखा जाए तो वैदिक पीरियड एक बहुत ही सोशल रिफॉर्म था। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ एंड द आर्यन वाज बेसिकली इज अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज होती थी, कुल होते थे। ठीक है, was headed by the senior most male member called कुलापा। ठीक है, तो जो जॉइंट फैमिलीज होती थी वहां पर जो सबसे सीनियर बंदा होता था उसे हम कुलापा कहते थे, जो सबसे हेड होता था। वुमेन इंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। वुमेन्स की अच्छी पोजीशन थी। ठीक है, दे वर फ्री टू चूज देयर हस्बैंड थ्रू स्वयंवर। स्वयंवर तो मतलब जो लेडीज थी, जो वुमेन्स थी, उनको अपने हस्बैंड को चूज करने का अधिकार था। स्वयंवर के थ्रू उनकी शादियां होती थी। ठीक है, और अपनी अनुसार वो लोग शादी करते थे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम क्या था? द दास, द दास्युस were the original dark skinned inhabitant of India। तो दास्यु और दासिस क्या थे? जिनको वैदिक एज में आर्यंस ने निकाल दिया था। ठीक है, तो वो क्या थे, बाहर थे। ठीक है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्ना। जो पहला डिवीजन सोसाइटी का था, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो। तो जो पहला डिवीजन था वो कलर के बेसिस पे होता था, जिसे हम वर्ना बोलते हैं। ठीक है, कलर के बेसिस पे पहला सोसाइटी का डिवीजन हुआ was between fair skinned Aryans and the dark skinned Dasya and Dashyus। तो किसके बेसिस पे हुआ? जो बहुत अच्छे कलर के होते थे उनको अलग किया गया। ठीक है, और जो डार्क कॉम्प्लेक्शंस के थे उन्हें अलग किया गया। तो ये पहला जो डिवीजन जो हुआ वो कलर के बेसिस पे हुआ। ठीक है, the dasis were generally treated as an inferior and had to perform menial jobs। जो दासिस थे, जो दाशियुस थे, वो उनके साथ बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार होता था। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि उनका कलर जो होता था वो थोड़ा सा क्या होता था,
कॉम्प्लेक्स होता था। और जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उन्हें पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता था, स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर्स के लिए यूज किया जाता था। जो क्षत्रिय थे उन्हें किसके लिए किया जाता था? दे वर द वॉरियर्स ऑफ द ट्राइब, मतलब जैसे कोई युद्ध होता है या कोई वॉरियर्स का काम जो करते थे वो क्षत्रिय करते थे। और जो वैश्यस होते थे और द रेस्ट ऑफ विच वर मेनली कल्टिवेटर्स एंड द क्राफ्टमैन, जो क्राफ्टमैन का काम होता था वो क्या करते थे? वैश्यस करते थे। शूद्रास कंप्राइज द दाशास, ठीक है। तो ये क्या था? एक वर्णा सिस्टम था। वर्णा सिस्टम के अंदर एक तो दाशियुस और जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, उनके बीच में डिवीजन हुआ था किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। लेट्स अंडरस्टैंड द रिलीजन, क्या रिलीजन थे, ठीक है। So the Aryans were greeted worshipper of the nature. The worship that in the nature, किस किस की पूजा करते थे वो? पृथ्वी की पूजा करते थे। पृथ्वी यानी कि अर्थ की पूजा करते थे। अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, वरुण, आकाश जो थे इनके क्या थे? इनकी ये पूजा करते थे, ठीक है। पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ों में मेनली ये लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे। सूर्य भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द फूड। फूड क्या था इनका? एनिमल एंड वेजिटेबल फूड वर टेकन बाय द आर्यंस, मतलब ये वेजिटेबल्स भी खाते थे, ग्रीनरीज भी खाते थे और एनिमल्स भी खाते थे। ग्रीनरीज में ये क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। नॉनवेज में लोग मीट खाते थे और हनी, माइल्ड बटर जो चीजें थी वो ये यूज करते थे। ड्रेस कैसा था इनका? ठीक है, आयरन वोर वन लोअर एंड वन अपर गारमेंट्स ऑफ वूल एंड स्किन, टर्बन इन द हेड, ठीक है। ऑर्नामेंट्स किसके यूज करते थे? गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन के ये लोग क्या यूज करते थे? एसेसरीज यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, ठीक है। अम्यूजमेंट क्या क्या था? अम्यूजमेंट, म्यूजिक, डांस, हंटिंग, हॉर्स राइडिंग, रेसिंग, गैम्बलिंग, ये सब क्या थे? आर्यंस के फेवरेट गेम्स थे। डाइस खेलते थे ये लोग, ठीक है, गैम्बलिंग करते थे। तो ये क्या थे? इनके अम्यूजमेंट फेवरेट गेम्स थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ऑक्यूपेशन। वहां की इकोनॉमी कैसे चलती थी, लाइफ क्या थी उनकी? तो मेनली क्या था जो लाइफ थी वो किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का जो फर्स्ट चीफ ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर था, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? अपने फील्ड्स को में तरह तरह की चीजें उगाते थे, ठीक है। काउज एंड बुलॉक्स स्टिल फॉर्म देयर चीफ वेल्थ। जो घोड़ा गाड़ी है या काउस के द्वारा जो गाड़ी है उसको क्या था? उनका वेल्थ का साधन था, ठीक है। The other occupation included cloth weaving, carpentry, blacksmith, goldsmithing and leather work. तो क्या था? कारपेंट्री, ब्लैकस्मिथी, सुनार, ये सारे क्या थे? ये अर्न करते थे वो इनसे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस। अब हम क्या समझते हैं? आर्यंस का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक। तो एक्सपेंशन में क्या था? फ्रॉम दिस टू सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन से इनका डेवलपमेंट हुआ। द आर्यन ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द साउथ। दे ऑक्यूपाइड होल नॉर्दर्न इंडिया में ऑक्यूपाई किया, फ्रॉम द हिमालयाज इनटू द विंध्यास एंड दे नेम एज आर्यव्रत। तो जो ऑक्यूपाइड एरिया था नॉर्थ इंडिया से, नॉर्दर्न इंडिया से फ्रॉम द हिमालयाज, उसे क्या बोला गया? टू द विंध्यांचल की ओर आगे बढ़े, उसको क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत नाम दिया गया, ठीक है। सो दे स्प्रेड आर्यंस ओवर होल ऑफ इंडिया बिफोर 400 BC, ठीक है। तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इपिक एज आई। इपिक एज में क्या हुआ? इपिक एज में as two great epics, the Ramayana and Mahabharata were composed during this period. तो इसी वैदिक एज में जो हमारे सबसे बड़े इपिक है, जो दो ग्रेट इपिक है, उसका डेवलपमेंट इसी पीरियड में हुआ जिसे हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। Now let's understand the rise of powerful kingdom.
अब हम उनके पावर, कैसे उनके पावरफुल किंगडम का उदय हुआ, ठीक है। सो द प्रोग्रेस ऑफ आर्यंस वर फॉलोड बाय अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जो ओल्ड ट्राइबल्स थे ऑर्गेनाइज वाज ग्रेजुअली स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेटेड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ द पावरफुल टेरिटोरियल स्टेट लाइक Kuru, which is in between Delhi and Meerut, पंचाला विच इज इन बरेली, काशी, मगध, ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका उदय हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल लाइफ हम इनकी समझ चुके हैं। पॉलिटिकल लाइफ में राजा कमांडर होता था, आर्मी होती थी, ठीक है। और राजा को कौन कौन सभा में असिस्ट करता था, एक तो कौन, जनता के द्वारा चुना गया, जो जनता के द्वारा चुना जाता था वो राजा को असिस्ट करता था, आर्मी कमांडर करता था, सेनानी होते थे, और जो पुरोहित होता था, जो हम ऑलरेडी वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, पुरोहित जो है क्या परफॉर्म करता था, रिचुअल्स परफॉर्म करता था। सेनानी क्या करता था, आर्मी को देखता था। बाली क्या था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, टैक्स कलेक्शन करता था बाली। तो इसी तरीके से जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल था वो डिसाइड था, राजा को ये सारे लोग राज अपना चलाने में असिस्ट करते थे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ, वहां के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक। तो वहां के लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो सारे वर्ण सिस्टम और कास्ट पे आधारित थी, ठीक है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट डिवाइड थे, ठीक। तो इसी प्रकार से वहां की सोशल लाइफ चलती थी। लेट्स अंडरस्टैंड द फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन। तो जैसा कि वैसे ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन्स की कंडीशन वहां पे बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। वुमेन्स को राइट था कि वो अपनी क्या कर सकते हैं, स्वयंवर खुद से अपने हस्बैंड को चूज कर सकती हैं, ठीक। और रिलीजन कैसा था, वहां पे किस किस की पूजा होती थी, विष्णु की, शिव की, इंद्र की, और वरुण की, अग्नि की, ये सारी चीजें जो थी वो इस वैदिक एज में इनकी पूजा होती थी। लोगों का मानना था कर्म के द्वारा ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द एजुकेशन, वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या था। सो द एजुकेशन सिस्टम वाज फॉर्मुलाइज्ड इन दिस पीरियड। तो क्या होता था, किंग्स सन वर सेंट टू द गुरुकुल्स। जो गुरुकुल जो बच्चे होते थे वो कहाँ पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, ठीक है। अपनी एजुकेशन वहां लेते थे गुरुकुल में, ठीक। और जैसे जो मैथमेटिक्स होती थी उसे गणित बोलते थे, अर्थमेटिक पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, एलजेब्रा, ये सारी चीजें जो थी वो इसी पीरियड में आई थी, ठीक है। स्टूडेंट गार्गी एक्सेल्ड हर सेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। जो गार्गी ग्रेट स्कॉलर जो है वो क्या थी, इसी पीरियड में वो आई थी। लेट्स अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर से वो लोग अपना मनी कलेक्ट करते थे, कारपेंट्री से करते थे, और कुछ लोग क्या थे, सुनार थे, मेटल और कॉपर से बनी हुई चीजों का यूज करते थे, उसको बाहर भेजते थे। पेंटिंग था वहां का, ठीक है। The important part of this is coin is the form of Nishaka, Satmana and Krishmana also came to existence in this period, ठीक है। तो मोस्टली जो था tin, silver, gold, copper and iron were used in making of ornaments, vessel implemented, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ उनकी इसी से चलती थी। Now let's understand the impact of Aryans culture. आर्यंस की कल्चर का हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा था। जब आर्यंस आए थे वैदिक एज में तो उनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आर्यन गेव इंडिया टू संस्कृत लैंग्वेज। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज दी, ठीक है। और इंडिया के जो रिलीजनल लैंग्वेज थी उसको डिसाइड किया।
They cleared the jungles and formed a strong agrarian base of the Indian economy. उन्होंने जंगल्स और एग्रीकल्चर को इंडिया की इकोनॉमी का साधन डिक्लेयर किया. They produced a rich literature. एक rich literature उन्होंने मतलब बहुत ही जो fine literature थी उसका आविष्कार भी इसी में हुआ. They gave to us philosophy which provides the foundation of the present day Hindu religion. जो आज एक हिंदूज का रिलीजन है, जो एक फिलोसफी सेट है, वो हमें इसी वैदिक एज में मिली, आर्यंस के द्वारा ही हमें वो मिला है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द चालकोलिथिक सेटलमेंट्स. तो जो चालकोलिथिक एज थी वो 4000 बीसी से 2000 बीसी तक का वो टाइम था. ठीक है, Neolithic age which succeeded in the Neolithic age refers to the period which man began use copper along with tiny stone implements. तो जिसमें क्या था, लोगों ने कॉपर के साथ टिनी स्टोन्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था. The name itself suggests the use of copper and along with stone. ठीक है. So the archaeologists have identified the following chalcolithic sites in India. So these are the which you have already मतलब आप स्क्रीन पे जिसे देख पा रहे हैं, ये जो क्या थी 1 2 3 4 5 हमारी जो थी chalcolithic sites थी. So dear student, this is all about the chapter 5. ठीक है, तो हमने चैप्टर 5 में वैदिक एज के बारे में पढ़ा. ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ देखी, वैदिक पीरियड और चालकोलिथिक सेटलमेंट्स की. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5. वी विल डिस्कस चैप्टर 6 इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.